Good day to all and a very warm welcome to my channel. My name is Harita Sadrani and I am explaining you State Board Standard 4th History subject Shiva Chhatrapati. Till now I have explained you 6 chapters of from this subject. Today I am going to explain you the second part of chapter number 7 Swaraj, the first conquest. If you have missed any of my study video, please subscribe to my channel so that you can get all the videos till date. So let's begin with the explanation. In first part, I have explained till this. Okay. Till here we have read that Shivaji decided to capture the various forts in Mawar region in order to get control over the area. The first fort was captured by him was Torna. After capturing the Torna fort, the Torna was renamed by Shivaji as Prachandagarh. On the fort Torna, a treasure was found at the time of repairing of Torna fort, and that treasure was used by Shivaji for different administrative work or for welfare. The one more fort he captured or he decided to capture was from the hills of Murubba Dev, right? The various people or the people from the different castes and communities were appointed in his administrative service, such as Maratha was appointed as Kiledars, Brahmins as Sabnis, Prabhus as Karkhanes, and the others like Mavras, Kolis, Ramoshis and Mahars were appointed in special security guard force which were at the फोर्ट. ओके, ये स्पेशल फोर्स के लिए उनको अपॉइंट किया था जो फोर्ट की रक्षा के लिए थे. ओके, सो लेट्स नाउ बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट. द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज. One day Shivaji climbed up the hill with a selected band of his followers and took possession of the partially completed fort. The money found on the Torna was used to complete the fortification of Murubba Dev. Shivaji named this fort Rajgarh. Okay, in last paragraph and in my last study video, I have explained that after capturing the Torna, Shivaji decided to capture one more fort, which was hardly 15 kilometers away from Torna, in the hills of Murubba Dev. Okay, this fort was partially मतलब आधा या इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन था उसमें, राइट? पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं था, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया था. दिस फोर्ट वॉज ऑल्सो नेग्लेक्टेड बाय आदिल शाह. यहाँ पर भी ज़्यादा सैन्य दल नहीं था, तो शिवाजी ने सोचा कि इस फोर्ट को भी अपने कब्ज़े में कर लूँगा, कैप्चर कर लूँगा. इसीलिए एक दिन उन्होंने कुछ सैन्य दल अपने साथ लिए और किले पर या उस पहाड़ पर मुरब्बदेव पहाड़ के किले पर जो था आधा कंस्ट्रक्शन किया हुआ, वहाँ पर आक्रमण किया और वो किला अपने कब्ज़े में ले लिया. पोजीशन मतलब अपना बनाना. ओके, अपना करना, राइट? उन्होंने उस किले को पे हक टुक दी पोजीशन मतलब उन्होंने उस किले की मालिकाना हक बोल सकते हैं, वो उन्होंने ले लिया, राइट? और जो भी पैसे तोड़ना में मिले थे, तोड़ना किले में मिले थे, सबको याद है ना कितने हंडे मिले थे? 4 सोने की मोहरों के 4 बड़े बड़े हंडे, उनको भरे हुए हंडे उनको मिले थे. उसमें से कुछ पैसा इस किले के कंस्ट्रक्शन में उन्होंने यूज़ किया और किले का नाम रखा राजगढ़. किले का नाम रखा राजगढ़. स्टोन
masons, carpenter, blacksmith, water carriers, other workers, all the people got busy, right? अब जब कंस्ट्रक्शन चलता है तो सबको काम मिलता है, तो किस किस को वहाँ पे काम मिला या कौन कौन बिजी हो गए? स्टोन मेसन्स, मेसन्स मतलब पता है जो कड़िया का काम करते हैं, जो घर बनाते हैं वो। अब यहाँ पे स्टोन क्यों बोला गया? क्योंकि उस ज़माने में जो काम होता था, जो घर बनते थे वो पत्थर के होते थे। ये देखिए, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ये पिक्चर है फोर्ट राजगढ़ का। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ईंट सीमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है? पत्थर है, राइट? तो ये पत्थरों से बनाया हुआ किला है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है स्टोन मेसन्स। ओके, जो पत्थर के काम करने वाले कड़िया। कारपेंटर्स को काम मिला, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार को काम मिला, जो पानी उठा के लेके जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम होता है तब वहाँ पे पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो पानी लेके जाने वाले किले तक, पहाड़ तक ऊपर उठा के, उनको भी काम मिला, और बाकी सब लोगों को काम मिला, और सभी इस किले के कंस्ट्रक्शन में बिज़ी हो गए। देखते ही देखते अब उस किले में क्या क्या हुआ वो हम देखते। दे बिल्ड दी राज महल, 12 महल एंड 18 वर्कशॉप। ओके, उस किले में क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ? राज महल बना, राजा का महल बना, 12 महल बने, अलग अलग सिपाहियों के लिए या सेनापतियों के लिए या मिनिस्टर्स के लिए महल बनाए गए वहाँ पर, और 18 वर्कशॉप्स बने। वर्कशॉप मतलब जिसे हम बोल सकते हैं वहाँ पर कारखाने बनाए गए उस ज़माने में। ओके, अलग अलग चीज़ों के या अलग अलग प्रोडक्शन करने के लिए वहाँ पे वर्कशॉप्स हुए होंगे, राइट? वर्कशॉप्स का कंस्ट्रक्शन किया। राजगढ़ बिकेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज, और ये जो किला था उसे शिवाजी महाराज ने अपनी फर्स्ट कैपिटल फोर्ट डिक्लेयर किया, ये उनकी राजधानी बनी। कैपिटल मतलब राजधानी बनी। तो दिस दे आस्क यू इन द एग्ज़ाम, द कैपिटल ऑफ फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज, तो आप लिखोगे राजगढ़। ओके, Shivaji's rapid progress. From then onwards, Shivaji moved swiftly and captured one fort after another in Mawar. तोड़ना और मुरब्बदेव के किलों को जीतने के बाद शिवाजी के कदम रुके नहीं, वो और तेज़ी से बढ़ने लगे, मतलब वो और किले उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिए। और जितने भी किले थे एक के बाद एक मावल एरिया में, सबको पता है मावल एरिया कौन सा है? यस, जो आज का रायगढ़ एरिया है उसे पहले मावल करके कहते थे, तो आज का जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो उस ज़माने में मावल करके जाना जाता था। ओके, द होल कंट्री नोन एज 12 मावल, द 12 मावल्स। ओके, तो पूरा जो एरिया था या जो पूरा प्रदेश था महाराष्ट्र का, उसे किस नाम से अब जाना जाने लगा? 12 मावल या 12 मावल्स। ओके, वॉज ओवरफ्लोइंग विद जॉय एंड एक्साइटमेंट। ये जितने भी एरियाज जब शिवाजी ने कवर किए, अपने अंडर ले लिए, कैप्चर कर लिए, वहाँ पर अब बहुत ही खुशियाँ थी, लोग बहुत जोश से भरे हुए थे और काफ़ी खुश थे। सब जोश और शक्ति से भरे, एक्साइटेड मतलब जोश से भरना, उत्साहित थे सब लोग। ओके, द पाटिल्स एंड देशमुख्स फ्रॉम मैनी विलेजेस केम्ड एंड सॉर एलिगेंस टू शिवाजी। जितने भी पाटिल्स और देशमुख थे, सबको पता है पाटिल्स और देशमुख उस ज़माने के जो हेड ऑफ विलेज होते थे उनको पाटिल और देशमुख की उपाधि दी जाती थी। तो ये जितने भी पाटिल्स और देशमुख थे सभी अलग अलग गांव से आके शिवाजी के पास आ गए, राइट? शिवाजी से वो मिल गए। सौर मतलब कसम खाई, एलिगेंस मतलब उन्होंने हाथ मिलाया या लॉयल्टी दिखाई, निष्ठा, हम बोल सकते हैं निष्ठा, निष्ठा की शपथ ली कि अब
हमारी जो निष्ठा रहेगी, हमारी जो लॉयल्टी रहेगी, जो हमारा फेथफुलनेस रहेगा, वो सब अभी शिवाजी के साथ में होगा, राइट। सभी पाटिल्स और देशमुख ने कसम खाई कि अब वो निष्ठावान रहेंगे शिवाजी के साथ. दे विल very faithful and loyal with Shivaji. But Mawar had its own share of black legs who were never ready who were ever ready to put a spoke in the fast moving wheel of Swaraj. जैसे अच्छे लोग होते हैं वैसे ही बुरे लोग होते हैं, कुछ आपके साथ में होते हैं तो कुछ आपके विरुद्ध में होते हैं. जैसे देशमुख और पाटिल्स शिवाजी के साथ में आ रहे थे, शिवाजी के साथ में स्वराज्य की स्थापना में उनको मदद कर रहे थे, वैसे ही कुछ लोग या कुछ सरदार ऐसे थे जो हमेशा शिवाजी के बोलते ना टांग खींचना या उनके जो वो काम कर रहे हैं उसमें बाधा डालने का काम कर रहे हैं. दे ऑलवेज यूज टू पुल द लेग्स ऑफ शिवाजी बाय क्रिएटिंग सम और अदर ट्रबल्स इन द पाथ ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज. तो जो ऐसे लोग थे वो हमेशा पोक मतलब हम बोलते हैं ना चलती हुई गाड़ी में अगर आपकी गाड़ी चल रही है और अगर आप चलती हुई गाड़ी में किसी ने डंडा मार दिया, व्हील पे डंडा मारा, या ये कहावत की तरह हम बोल सकते हैं, राइट. ये कहावत है कि चलती हुई गाड़ी में बीच में अगर डंडा व्हील्स में अगर डंडा घुसा दिया किसी ने तो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, व्हील्स टूट भी सकते हैं. तो मतलब जो गाड़ी भाग रही थी शिवाजी की स्वराज्य की गाड़ी, एक के बाद एक जो किले वो अपने कब्जे में ले रहे थे, उस गाड़ी को रोकने का वो हमेशा प्रयत्न करते थे. कौन? वो सरदार या वो लोग जो शिवाजी को पसंद नहीं करते थे या उनको शिवाजी का काम पसंद नहीं था, वो लोग. जेलस ऑफ शिवाजी सक्सेस दे कंप्लेंट टू आदिल शाही कलेक्टर एट शिरवर. जो शिवाजी से जलते थे, जिनको उनका काम पसंद नहीं था, उन्होंने क्या किया, आदिल शाह के कलेक्टर को, कलेक्टर मीन्स एक ऑफिसर होगा जिसने आदिल शाह ने उसे अपॉइंट किया होगा, क्योंकि सबको पता है मावल एरिया किसके कब्ज़े में था, आदिल शाह के. तो आदिल शाह ने वहाँ पर अपने जो ऑफिसर्स रखे थे उसको जाके इन सब सरदारों ने कंप्लेंट की, किसके खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ. और ये कहाँ पर था, ये कलेक्टर किस एरिया में था, शिरवर. ओके. द कलेक्टर डिस्पैच्ड मैसेंजर्स टू बीजापुर एंड इन्फॉर्म्ड आदिल शाह ऑफ शिवाजीज रैपिड प्रोग्रेस. फिर कलेक्टर ने क्या किया, एक संदेशवाहक को भेजा. डिस्पैच मतलब भेजना, मैसेंजर जो संदेश लेके जाता है, ओके, उस ज़माने के पोस्टमैन हम बोल सकते हैं. भेज दिया आदिल शाह के पास, और शिवाजी की जो भी प्रोग्रेस हो रही थी या शिवाजी जो भी काम कर रहे थे वो उसके बारे में उसने जाके आदिल शाह को बता दिया. इट मीन्स वॉट, नाउ आदिल शाह केम टू नो एग्जैक्टली वॉट इज़ हैपनिंग इन द मावल रीजन. अब तक आदिल शाह को पता नहीं था कि मावल में क्या हो रहा है. ओके, ही वॉज रिलैक्स, उसको कुछ नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है. लेकिन जैसे ही उसके कलेक्टर ने एक मैसेंजर को डिस्पैच किया, अब आदिल शाह को पता चल गया कि उसके मावल एरिया में हो क्या रहा है. शिवाजी द शूड पॉलिटिशियन, शूड मतलब चालाक, चतुर पॉलिटिशियन थे शिवाजी. वो कैसे, अब हमें इस पैराग्राफ में पता चलेगा. जैसे ही आदिल शाह को पता चला उसके एक मैसेंजर से कि शिवाजी मावल एरिया में बहुत सारे किले अपने कब्ज़े में कर रहा है, तो आदिल शाह की नींद उड़ गई, वो परेशान हो गया. और उसने क्या किया वो अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है. आदिल शाह वॉज मोस्ट सरप्राइज टू गेट द न्यूज़. वो आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो गया वो आदिल शाह न्यूज़ मिलते ही. कौन सी न्यूज़? यस, शिवाजी की मावल एरिया में जो किले अपने कब्ज़े में ले रहे थे उसकी न्यूज़ मिलते ही उसे आश्चर्यचकित हो गया वो. ही आस्क्ड शहाजी राजे फॉर एन एक्सप्लेनेशन. ही स्टैंड्स फॉर आदिल शाह. आदिल शाह ने इसके बारे में शिवाजी के पिताजी यानी शाहजी राजे से
एक्सप्लेनेशन मांगा, बोलिए ऐसा क्यों हो रहा है, आपका बेटा किले मावल एरिया के एक एक अपने कब्जे में क्यों ले रहा है, बताइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए. Shahaji Raze got himself out of this difficult situation by telling the Sultan that Shivaji Raze had probably taken over the forts for the better administration of the Jahangir. अब शाहजी राजे भी बहुत चतुर थे, चालाक थे. उन्होंने इस सिचुएशन को बराबर हैंडल किया. उन्होंने आदिल शाह को क्या कहा कि शिवाजी ने ये सब जो किले अपने कब्जे में लिए हैं, प्रॉबेबली मीन्स शायद से या किसी चीज़ हम बोलते ना इसलिए, ओके, कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो देखभाल है वो ठीक से कर पाए, जागीर की देखभाल ठीक से हो, राइट. तो अपने बेटे को उन्होंने ऐसे बचा लिया कि किले कब्जे में इसीलिए लिए रहे हैं शिवाजी, ताकि जो जागीर है आपकी, आदिल शाह आपकी जो जहांगीर है, वो हम उसका जो कामकाज है वो ठीक से देख सके. शिवाजी ऑल्सो सेंड हिज मैसेज टू सुल्तान. अब शिवाजी ने भी अपना एक मैसेज सुल्तान आदिल शाह को भेज दिया. आई हैव टेकन पोजिशन ऑफ द फोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री साइड्स. अब शिवाजी महाराज ने भी वही रिप्लाई दिया आदिल शाह को. आदिल शाह, मैंने जो ये फोर्ट अपने कब्जे में लिए हैं, वो मैंने उस जो कंट्री साइड मीन्स गांव, ओके, गांव या उस एरिया के अच्छी देखभाल के लिए या उसके अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस रीज़न के लिए लिया है, ओके. वी डिड दिस ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ सुल्तान. और ये जो कुछ मैंने काम किया है वो सिर्फ मैंने सुल्तान के लिए ही किया है या सुल्तान की अच्छाई के लिए ही किया है. देयर वॉज नो इविल डिज़ाइन एट द बैक ऑफ दिस एक्शन. शिवाजी ने कहा सुल्तान से कि ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ, ये जो मेरा एक्शन है या जो मैं काम कर रहा हूँ, जो फोर्ट मैं अपने कब्जे में ले रहा हूँ, इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी कोई चाल नहीं है, या मैं आपको फंसाना नहीं चाहता, या मैं आपको दगा नहीं देना चाहता. वॉट एवर आई एम डूइंग दिस फॉर द जागीर. I am doing this for the good administration of the Jagir, and all my action is in the good faith of आदिल शाह. ओके, तो शिवाजी ने ऐसे आदिल शाह को अपने बातों में, मीठी मीठी बातों में एकदम अच्छे से समझा दिया कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ. और ऐसे शत्रु से उन्होंने हमेशा युद्ध करके ही नहीं हमेशा शत्रु जीते जा सकते. कभी कभी शत्रु को जीतने के लिए अपना थोड़ा सा जो क्लेवरनेस है या अपनी चतुराई का भी हमें प्रमाण देना पड़ता है. तो यहाँ पर शिवाजी ने जो आदिल शाह को जवाब लिखा है या उसको जो जवाब दिया, वो बहुत ही चतुराई से दिया हुआ जवाब था. ओके. द टू फोर्ट्स ऑफ कोंडाना एंड पुरंदर टू हैड स्ट्रैटेजिक लोकेशन. जो ये दो फोर्ट है कोंडाना और पुरंदर, इनका जो लोकेशन था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, अच्छी जगह पर थे जहाँ से शत्रु से सुरक्षा भी हो सकती थी और शत्रु पे नज़र भी रखी जा सकती थी. ओके. तो शिवाजी यूज्ड हिज पॉलिटिकल स्किल एंड टुक कंट्रोल ऑफ बोथ द फोर्ट्स. तो शिवाजी ने यहाँ पर भी अपना जो पॉलिटिकल स्किल था, ओके, उसे यूज़ किया और इन दोनों किलों को अपने कब्जे में ले लिया, पुरंदर और कोंडाना. आपने अभी देखा, पढ़ा ऊपर कि उन्होंने किस चतुराई से आदिल शाह को जवाब दिया कि आदिल शाह, ये जो किले मैं अपने कब्जे में ले रहा हूँ मावल एरिया के, वो मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ, इसमें मेरा कोई सेल्फिशनेस नहीं है. ओके, आई एम नॉट डूइंग फॉर माई ओन, आई एम डूइंग it for you, I am doing in the interest of Adil Shahi. Okay, and listening to this, Adil Shah was also very happy. So in the same way, he used his political skill, his political intelligence to capture these two strong forts of Mawar area, right? The next fort to come under his swayage was Rohida. जो नेक्स्ट फोर्ट उन्होंने अपने कब्जे में किया कोंडाना और पुरंदर के बाद, वो था रोहिड़ा.
दिस वॉज द फास्ट वर्क इंडीड, और ये सब कुछ बहुत ही तेज़ी से हो रहा था। एक के बाद एक फोर्ट शिवाजी अपने कब्जे में ले रहे थे। पहले उन्होंने तोरना लिया, फिर मुरुब्बदेव के किले अपने कब्जे में ले लिया, फिर कोंढाणा और पुरंदर को लिया, फिर रोहिड़ा भी उन्होंने लिया। धीरे धीरे एक के पीछे एक वो किलों को अपने कब्जे में ले रहे थे। एंड देयर वॉज नथिंग टू स्टॉप शिवाजी नाउ, और अब शिवाजी को रोकने वाला कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आदिल शाह को ही ऐसा जवाब दिया था जिसे सुन के आदिल शाह खुश हो गया था और बहुत सारा एरिया उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। अब वो काफ़ी ताकतवर हो गए थे, इसलिए अब उनको रोकने वाला और उनको टोकने वाला कोई नहीं था। ओके, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर chapter. If you liked my explanation, if you have understood my explanation, please do subscribe to my channel, like my videos and share. That's all for the day. Take care. Bye bye.